Hello students of class 7th, hope you all are safe at home and how are your studies going on? Do your work on time, complete your work. So let's start the lesson 4, the ashes that made trees bloom. So we have have left the lesson here on page number 62. Open your page number 62. Now let's start this. Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people, "By the way, get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. सो फिर ये तब की बात है, कुछ समय बाद ही जो उन दिनों में, मतलब ये तब की बात है जब डायमोस के समय में वहाँ की रीति थी, वहाँ का ये रिवाज था कि जो वहाँ पर जो उनका राजा जो थे, जब वो वहाँ से गुज़रता था, सभी लोग वहाँ पर बैठ अपनी मंजिलों की खिड़कियों को, अपने घरों की खिड़कियों को, जो ऊंची मंजिलों पर होती थी, मीन्स जो नेक्स्ट फ्लोर पर होती थी, ऊंचाई पर होती थी, तो उनको वो बंद कर लेते थे। यहाँ तक कि इतना टाइट बंद करते थे वो कि उनके ऊपर अगर थोड़ा सा भी स्पेस हो, वहाँ पर वो कागज़ जो है वो चिपका देते थे ताकि राजा को देखने की गुस्ताखी ना हो जाए। सड़क के ऊपर चलने वाले सारे लोग अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाते थे और ऐसे ही सीधे रहते जब तक शोभा यात्रा गुजर नहीं जाती थी। तो जैसे ही उनका कारवां जब नज़दीक आया तो एक लंबा आदमी आगे रास्ते के आगे को चलता रहता था और अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, वो ऐसे उनको बोलता रहता था जब उनकी जो शोभा यात्रा वहाँ से गुजरती थी। तो अचानक कोचवान की नज़र पेड़ पर बैठे बूढ़े आदमी पर गई। वह गुस्से से उसको बुलाने वाला था, परंतु उसे इतना बूढ़ा देखकर उसने उसे ना देखने के मतलब ऐसे शो किया जैसे उसने उनको उस बूढ़े आदमी को देखा ही ना हो। और जब वहाँ से कारवां गुजरा तब राजा की पालकी जैसे ही नज़दीक आई, बूढ़े आदमी ने एक चुटकी राख को उस पेड़ पर छिड़क दी। एक ही क्षण में वह फूटकर खिल गया। The delighted Daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered parents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was
to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो अब क्या हुआ कि जैसे वो जो डायमो था, जब वो वहाँ से गुज़रा तो उस बूढ़े आदमी ने जब उसके ऊपर राख डाली तो वो जो था वो खिल गया पेड़। और तो ऐसे ही डायमो जब बहुत ज़्यादा वो जो बूढ़ा आदमी था वो उसने जब ऐसा किया तो डायमो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी यात्रा को जो थी वहीं पे कारमा को उसने वहीं पर रोक दिया और उसने कहा कि कितना अच्छा लग रहा है ये, उसे बुला कर लाओ जो जिसने ये किया है। तो जब उसको बुलाया गया तो उसको राजा ने थैंक्स बोला और उसको कुछ प्रेजेंट्स दिए, बहुत सारे उसको प्रेजेंट्स दिए, कुछ नहीं बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए उसको। और उसको जो है इनवाइट किया गया कि वो उसके महल पर आए। तो जब इतनी सारे गिफ्ट्स उसको दिए गए तो वो बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने जो खुशी थी अपनी वाइफ से जाकर शेयर की। जब वो अपनी खुशी को शेयर कर रहा था तो वहाँ पर जो वो ग्रेडी नेबर था, वो लालची जो उनके पड़ोसी था, वो ये सब चीज़ें सुन रहा था। तो उसने भी ऐसे ही किया, उसने भी वो मैजिक ऐश को लेके गया और जब उस राजा का कारवां वहाँ गुज़र रहा था तो ऐसे ही वो जब जो लंबा सा आदमी बोलता है कि सब नीचे झुक जाइए, नीचे बैठ जाइए, तो उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो वहाँ पर उसी पास में जो एक चेरी का ट्री था, वो सूखा हुआ ट्री था, वो लालची आदमी उस पर चढ़ गया। और जब डायमो और उसके जो यात्रा थी वो वहाँ से गुज़री तो उसने भी ऐसे ही किया जैसे कि वो बूढ़े आदमी ने किया था। बिल्कुल जब उसके नीचे पहुँची तो एक मुट्ठी राख पेड़ पर उस पर फेंक दी पेड़ पर। जैसे ही उसने राख फेंकी तो हवा से उड़कर जो वो राख थी वो उस राजा की आँखों में और उसकी पत्नी की आँख में घुस गई। इतनी छींकें और गला रूंध गया, उसने शोभा यात्रा की शान और इज़्ज़त खराब कर दी। वह आदमी जिसका काम है ये, राजा ने उसे चिल्लाया और कहा कि उसे बुला कर लाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। बूढ़े बेवकूफ़ को कॉलर से पकड़कर पेड़ से नीचे उतार कर लुढ़काते हुए और उसकी राख की बाल्टी को सड़क के किनारे पर गड्ढे में डालकर और उसको लालची आदमी को उन्होंने जो उसके सैनिक थे उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। फिर उसको इतना ज़्यादा मारा कि उसको वहाँ पर अधमरा ही छोड़ दिया। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो वो लालची आदमी था वो वहीं पर उसे कीचड़ में गंदी जगह पर डाल दिया गया और वो वहीं पर जो पड़ा रहा और वहाँ पर वो फिर उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब क्या आपने इस लेसन से सीखा है कि जैसे ये कोई दयालु होते हैं तो जैसे वो विकेट था, लालची था, तो उसको उसकी जो गलती थी उसको सज़ा मिली। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और ऐसे वो उसमें कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी, और जो वो दयालु था आदमी, उस कुत्ते का जो दोस्त था वो बड़े आराम से रहने लगा और उसको जो है अब बहुत सारा पैसा जो राजा ने दे दिया था तो उससे उसकी लाइफ जो थी वो बहुत अच्छे से बीतने लगी। तो कैसे उसने दयालु आदमी की उस कुत्ते ने कैसे हेल्प की और वो हस्बैंड वाइफ जो थे बहुत खुशी खुशी आगे रहने लगे। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है? ये इसके राइटर हैं विलियम एलॉयड ग्रीव्स
ग्रिफिथ्स ये एक जापानीज़ कहानी है, जापान की है ये कहानी, ये जापानीज़ राइटर हैं। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है कि लालच जो है वो बहुत बुरी बला होती है। हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छे से रहना चाहिए, दूसरों को बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करना चाहिए, और हमें जो है जानवरों से भी, इंक्लूडिंग एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ भी बहुत अच्छे से काइंडली उन्हें ट्रीट करना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा, बट ये है कि जब एनिमल्स बाहर होते हैं तो वो काटते नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, द लेसन इज़ completed here. Take care. Thank you.